Good afternoon all. Myself Shalini Divedi, Assistant Professor in Department of Fire Technology and Safety Engineering, IAS IPS Academy. I am taking a subject of salvage evaluation of fire situations, and today I am going to speak about and tell about the salvage operation and tools. What is first of all we go through the what is fire. Fire, there is the so many objects that can be combustible through the combustible materials and destructive from speed to speed incidents characterized by uncontrolled combustions of materials and resulting in heats, flames, smokes and often irreparable damage to property, infrastructure and tragedical lives. The fire varies from the chemical compositions, fuel, oxygen, available combustible sources and environmental conditions. Fire can be manageable and non-manageable by encompassing the materials, and it can be described in so many type of structural fire, wildfire, industrial fire and so on. Now due to the fire there are so many type of damages. First of all I go through, this is the primary damage. First you block, have you seen, this is the primary damage that is caused by the and defined the fire and smokes, and secondary damage is result from the fire suppression. And the topic is related with the fire is salvage evaluation and in the fire situations. So fire salvage evaluation is the contains that during the suppression we have to control the fire and remove the properties and the mitigate controls and damages to the control the fire and property controls, property damage, control the damages from the fire. The first cause is fire, and so first cause is called as a primary and second cause is known as the secondary due to the fire suppression. Suppression means during the fire we go through control the fire by the water, by the ACP, DCP, whatever the material is there, we have to suppress the fire. That is the secondary type of the damage. Due to the suppression we are during the controlling the fire, we are control the fire and control the situation. We we suppress the things and resultly we uncontrollable things are damaged. So this is the secondary fire. And the firstly fire is the smoke. स्मोक की वजह से भी बहुत सारी जगह बहुत अनकंट्रोलेबल डैमेजेस हो सकते हैं. दैट इज नोन एज प्राइमरी डैमेज. Salvage and overhaul. What is salvage? Salvage is the protection of materials and persons during the fire, and overhaul is the situation where the during the suppression or after the incident we are go through the controlling the probability of controlling the fire or some type of saving material or saving lives. That is known as the overhaul. And salvage, we go through the salvage is have you seen the first block, that is this one is controlling during the fire. When we go through the situation or scenario, we control the situation by preparing the probability of controlling the problems or controlling the situation by removing the materials from one place to another place, or mitigates problems. And sometime we also control the things by replacing person one place to another person, another place. That is known as salvage. The definition of salvage is: salvage operation is the context of fire, refers to the systematic and organized effort undertaking to protect, recover and preserve valuable and essential assets during and after a fire incident.
The most important thing during the solving or salvaging the problem is during and after the fire incident. During the fire incident, we save someone or save the property or save the person occupant in during the scenario, that is known as salvage. This situation is aimed to during the salvage we control and minimize the further damages of property or contains infrastructure and so many things during through the firefighting efforts. As you seen, the salvage operation or salvage is the systematic organized undertaking problems after saving the lives and controlling the fire protecting properties is the higher priority of the firefighter. कि आपका जब फायर फाइटर और फायरमैन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वहाँ पर जो भी कोई ऑक्यूपेंट है उसको सेव करना, दैट इज़ नोन एज साल्वेज. और साल्वेज जब एफर्ट डालते हैं, साल्वेज के थ्रू हम सारी प्रॉपर्टीज़ को सेव कर सकते हैं ड्यूरिंग द फायर. और ओवरऑल में हम वहीं पर जब प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है उस समय जब हम सप्रेशन कर रहे हैं और आफ्टर डैमेजिंग हम कुछ एवेल्यूशंस करते हैं तब हम उसको जब सेव करते हैं वो ओवरहॉल होता है. साल्वेज जो रहता है वो आपका लाइफ कंट्रोलिंग करना और डैमेजेस को कंट्रोल करना ड्यूरिंग द फायर, दैट इज नोन एज द साल्वेज. द सिस्टमैटिक प्रॉपर्टी और लाइक थ्रू द टूल्स और इक्विपमेंट बाय द फायर फाइटर और फायरमैन assess the property and assess the scenario to control the damages during the fire, that is known as salvage. What is the importance of salvage operation in fire? Minimize the property loss. First of all, we save the person and serve very different type of modes to serve basically firemen और फायर पर्सन का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पर्सन को ऑक्यूपेंट को सेव कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी को हम सेव कर सके. तो इम्पॉर्टेंस ये है कि उसकी प्रॉपर्टी लॉस को हम मिनिमाइज कर सकें. सेकेंडली, हम जहाँ पर इन्हेंस कर सके प्रॉपर सेफ्टी को इन्हेंस करें बाय मिटिगेटिंग रिस्क एसोसिएटेड विथ स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि और ज़्यादा आपका अगर स्मोक कंट्रोल नहीं हो रही है तो बाय द स्पेस बाय द लेन आपका और ज़्यादा स्मोक इंक्रीज हो जाएगा, वेंटिलेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसके कारण और सारे डैमेजेस भी हो सकते हैं. इसके साथ आपके अगर प्रॉपर्टी और ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, फायर इंक्रीज होती जा रही है, तो प्रॉपर्टी में और ज़्यादा डैमेजेस हो सकते हैं. तो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है साल्वेज. हम ओवरहॉल का भी काम कर सकते हैं. वाई ड्यूरिंग द फायर, हम ड्यूरिंग द फायर ही हम फायरमैन को क्यों सेंड करें प्रॉपर्टी पर और सेव करवाएं, क्योंकि ड्यूरिंग द फायर जब हम किसी को सेव करते हैं तो इट मे बी कि वो हाफ पोजीशन में हो और वो अपने उसको हम सेव कर सकें और प्रॉपर्टी को भी सेव करें. तो इम्पॉर्टेंस ये है साल्वेज ऑपरेशन की कि सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी लॉस, ऑक्यूपेंट का लॉस हम बचा सकते हैं. आप कोई भी प्रॉब्लम में है तो हम उसको बाहर सेफ सिचुएशन पे ले जा सकते हैं, प्रॉपर्टी लॉसेस को हम सेव कर सकते हैं और यहाँ जो आपका प्रॉपर्टी लॉस है वो आपका स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन जो ऑपरेशन है उसकी हेल्प से हम यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं. फाइनेंशियल भी हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं. साल्वेज एफर्ट्स जब हम डालेंगे तो फिर आप फाइनेंशियल भी उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ द टूल एंड इक्विपमेंट दैट यूज्ड इन salvage. What is the objective of salvage? Protecting content in place, moving content to safe locations, removing content from structures, and supports insurance claim and assessment. जब हम साल्वेज की बात करते हैं तो इवैल्यूएशन जो है साल्वेज फायर फाइटिंग जब आप करते हैं तो आप सिनेरियो के थ्रू ही आप उसको पता कर सकते हैं कि वहाँ पर किस टाइप की फायर है. फायर भी बहुत सारी टाइप की हो सकती है. स्ट्रक्चर फायर हो सकती है, वाइल्ड फायर हो सकती है, पूल फायर है या एनक्लोजर फायर है, कन्फाइंड फायर है. आप डिफरेंट टाइप के फायर में आपको साल्वेज करने जाते हैं. साल्वेज मतलब कि सेफ करना. आप फायर पर्सन है, फायरमैन है, फायर इंस्ट्रक्टर
है, तो दैट यू हैव टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड मैक्सिमाइज द सेविंग प्रॉपर्टीज टू सेव द पर्सन और द प्रॉपर्टीज, दैट इज साल्वेज। एंड विलिंगली जब फायरमैन जब ये करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट, तो हम कंटेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड द इक्विपमेंट्स। और लास्ट जब हम इवेल्युएशन की बात करते हैं फायर सिचुएशन में, तो वेरी फर्स्ट जब हमने सीन को देखा है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि बाय द फॉल्ट है या आपने ये किसी के द्वारा की गई है, तो उसके थ्रू आपको जो प्रॉपर्टी लॉसेस है, फाइनेंस लॉसेस है, उसको आप रिकवर कर सकते हैं क्या, तो उसमें आपको सपोर्ट करना होगा। कि जो ऑब्जेक्टिव है साल्वेज का वो लास्ट ये कि आप इंश्योरेंस क्लेम और असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो इवेल्युएशन जो है वो साल्वेज का ये है कि सबसे पहले तो आप प्लेस को देखेंगे, जिससे कि आप पता कर पाएंगे कि इंटेंशनली फायर है या ऑटोमेटिक फायर हुई है या किसी कंबशन मटेरियल की इलेक्ट्रिकल फायर है या नॉर्मल फायर है, कम्बस्टेबल मटेरियल से हुई है, तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। जब आप सेफ लोकेशन पे चीज़ों को ले जाओगे तो आप स्मोक के थ्रू आप उसकी रेट्स पता कर सकते हैं कि आपके 4 स्टेजेस में, फायर के स्टेजेस में से कौन सी स्टेज में का फायर है, वो भी आप पता कर सकते हैं इवैल्यूएशन से। तो ऑब्जेक्टिव साल्वेज का ये है कि जब आपने प्लेस पर प्रोटेक्ट भी किया है पर्टिकुलर थिंग को और मूव भी कर लिया है, और वहाँ पर जो भी सामान है उसको भी और पर्सन है उसको भी हमने सपोर्टिवली चेंज कर दिया एक प्लेस से दूर, तो उसको सेफ भी कर दिया है। साल्वेज दैट मीन्स कि आपने उसको सेव भी किया है और उसको डैमेज होने से बचा भी लिया है, और आपके फ्यूचर में भी अगर आपने इवेल्युएट किया है उसको, तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी टाइप ऑफ फायर ऑपरेशंस। रिमूविंग हीट्स, रिमूविंग हीट्स मीन्स कि आपको HRR आपको हीट कंट्रोल करना है। हीट कंट्रोल करने के लिए आपको उसकी रिलीज रेट पता होनी चाहिए। दैट इज़ द वन ऑपरेशन ऑफ साल्वेज। तो साल्वेज का ऑपरेशन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव हीट, क्योंकि आप दूर से ही धुआं देखकर, दूर से ही आप हीट की स्पीड देखकर पता कर सकते हो कि 4 स्टेजेस में आप कौन से स्टेज की फायर है वो आपके यहाँ पर सॉल्व करना है आपको। तो ऑपरेशन, क्योंकि हमको यहाँ पे इवेल्युएशन भी करना है और सॉल्व भी करना है, तो आपने दूर से जो आपका हीट को देखा है उसको आपको रिमूव करना है। तो जब आप सिनेरियो को देखते हैं, आप लाइक कि फाइंड आउट कर पाते हैं, जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको धुआं दिखा, तो आप पता कर सकते हैं कि ये किस टाइप की फायर है, फुल डेवलप्ड फायर है या अभी जस्ट शुरू ही हुई है। तो उस तरीके की फायर को जब हम रिमूव करेंगे तो उसके लिए सप्रेशन मटेरियल जो है फायर पर्सन उससे डील करेगा और वैसा ही इक्विपमेंट वहाँ पर लेकर जाएगा। अब सेकेंडली साल्वेज जो सिर्फ फायर के लिए नहीं है, आप वाटर के लिए भी कर सकते हैं, किसी केमिकल प्रोडक्ट में भी, किसी भी प्लांट में भी आपको करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपने हीट को देखा, अगर हो सकता है कि वाटर कंडीशन में है, मराइन्स में है, तो वहाँ पे भी आपको वाटर रन ऑफ देखना होगा, तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। विद देयर आर सो मैनी टूल्स एंड इक्विपमेंट that help in the salvage operation for removing the water and dealing with the heat or fire. Third one is the removing water from the buildings. There are so many objects and operation, and so as well as tools with the help of them we remove the water from the building. अब building में चाहे वो अंडर वाटर फिलिंग हो तो हम उसको टेक आउट कर सकते हैं with the help of PTO, आपके वैक्यूम वाटर टैंक के थ्रू या फिर आपके पंप्स के थ्रू। फोर्थ वन इज सिक्योरिंग अ बिल्डिंग आफ्टर अ फायर। अब आपको जब बहुत ज़्यादा वाटर या फायर इंक्रीज हो गई है किसी भी स्ट्रक्चर में, देन व्हाट यू हैव टू डू, तो उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होगा, कौन सा टूल यूज़ होगा, वो भी आपका साल्वेज ऑपरेशन में ही वर्कआउट करता है। कब
कवरिंग विथ ब्रोकन विंडोज एंड डोर्स। जब हम साल्वेज करने जाते हैं, मतलब साल्वेज मतलब सेफ, साल्वेज मतलब सेफ और रिड्यूस द मिनिमाइज द डैमेजेस एंड विलिंगली आपको पता चलेगा कि आप ये काम कर रहे हो तो आप किसी को सेव कर रहे हैं, दैट इज साल्वेज। तो आप जब किसी चीज़ को हम लाइक कि फायर है और किसी कॉर्नर पर फायर है और उसके साइड बाय साइड कोई भी अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें भी फायर हो सकता है। अगर रेसिडेंशियल प्लेस है या फिर ऑफिशियल कमर्शियल प्लेस है तो हो सकता है वहाँ इलेक्ट्रिक फायर हो सकती है। तो यू हैव टू कंट्रोल और कवर अप द थिंग्स दैट कंट्रोल द सिचुएशन की वो वाटर के लिए भी हो सकती है। हो सकता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर हो तो आपको उसको रन आउट करवाना हो, या हो सकता है फायर हो तो आपको विद द हेल्प ऑफ एक्सटिंग्विशर, अगर एक्सटिंग्विशर्स वर्क नहीं कर रहे हैं, स्प्रिंकलर्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उस समय आप किस तरीके का इक्विपमेंट यूज़ करोगे तो आप ब्रोकन मटेरियल्स को भी कंट्रोल कर पाएँ और जो चीज़ है वो भी आप उसको सेफ कर पाएंगे। पैचिंग वेंटिलेशन ओपन, अभी जब हम साल्वेज की बात कर रहे हैं तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि रिमूविंग हीट, तो जब हम हीट की बात कर रहे हैं तो फायर होगी तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्मोक होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर आप धुएं को देखकर पता कर सकते हैं कि, या स्मोक को देखकर आप स्मोक क्लाउड्स को देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके की आपकी फायर हुई है। तो उस फायर को डील करने के लिए, उस फायर से हम सेफ करने के लिए वहाँ पर क्या वेंटिलेशन की नीडेड होगी, क्या वहाँ नेचुरल, देयर आर टू टाइप ऑफ वेंटिलेशन, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड नेचुरल वेंटिलेशन। ड्यूरिंग स्ट्रक्चर और IFSC कोड्स के थ्रू, आपके स्ट्रक्चर्स के थ्रू यहाँ पर फाइंड आउट होते हैं कि इतना ही नेचुरल वेंटिलेशन वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन की नीड है तो आप उसको ओपन करेंगे। एक्सपेलिंग स्मोक जब आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वो लंग्स में वर्कआउट करने लगता है तो लोग वहाँ पर ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, उसको भी हमको एक्सपेल करना होता है। तो विद द हेल्प ऑफ वेंटिलेशन, जैसे कि 6 पॉइंट में आप देख रहे हैं, तो वहाँ पैचिंग वेंटिलेशन ओपन करनी गई तो आपकी एक्सपेलिंग, स्मोक को एक्सपेल आप कर पाएंगे। स्मोक को एक्सपेल हम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन और with the help of the mechanical ventilations. So these are the operations, salvage operation, that deals with the fire persons, deal by the fire person during the salvage operation. There are so many tools that used in salvage operation. I suggest here, or I show you someone that work more and more in normal salvage situation. First one is salvage cover. Like in previous slide, in 5th number I have written here covering up broken windows and doors. So that means कि आप जो salvage covers की बात कर रहे हैं, salvage cover जब कोई डैमेज हुआ है तो और ज़्यादा डैमेज ना हो और किसी प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे, किसी पर्सन को डैमेज ना करे, तो हम उसकी सेफ्टी के लिए salvage कवर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर वैक्यूम। वाटर वैक्यूम जब हम वाटर से डील करते हैं इन द फील्ड ऑफ साल्वेज, जब हमको वाटर सिचुएशन में जाना है, मरीन में जाना है, अंडर वाटर जाना है, तो हम वाटर वैक्यूम का यूज़ करते हैं। दैट हेल्प कि आप वाटर को एक जगह इकट्ठा कर और उसको सेफली एक दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हैं जिससे कि पर्सन या प्रॉपर्टी को कोई इफेक्ट ना हो। थर्ड वन इज फ्लोर रनर। फ्लोर रनर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टूल दैट हेल्प इन कि आपने कि कोई बहुत दिस इज जस्ट कि कारपेट की आपने कहीं फायर हुई है या फिर आपका बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक है किसी बिल्डिंग में, अंडर वाटर है या फायर हो गया है, तो आप कैसे ऑक्यूपेंट को या पर्सन को या फायर पर्सन को खुद ही वहाँ से जाना है तो वो कैसे वर्कआउट कर पाएगा वहाँ पर। तो वर्कआउट करने के लिए फ्लोर रनर का, वाटर रिलीज करने के लिए हम फ्लोर रनर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पोर्टेबल पम्प। पोर्टेबल पम्प दैट इज़ कि आपने नॉर्मल कंडीशन में भी देखा होगा कि एक
कहीं पर पानी फिलअप हो गया है और हमको उस पानी को टिक आउट करना है, तो हम एक छोटा पंप लेकर जाते हैं, दैट इज सबमर्सिबल टाइप का एक पंप रहता है। अगर छोटी सिचुएशन है तो गैलन टू गैलन यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि आप कितने, देयर आर 3 टाइप ऑफ पोर्टेबल पंप्स, जिनको हम आप पीटीओ भी बोल सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप ऑफ जो पीटीओ जो रहते हैं वो आपके इक्विपमेंट में यूज़ आते हैं, टेंडर्स में यूज़ आते हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं कि आप फायर के सिचुएशन में आप उससे डील कर सकते हो। पोर्टेबल पंप लाइक कि आपने बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक है यहाँ किसी सिचुएशन में और आपको सॉल्वेज करना है, यानी कि किसी पर्सन को या किसी प्रॉपर्टी को सेव करना है, तो हम पोर्टेबल पंप से विद द हेल्प ऑफ पोर्टेबल पंप हम वहाँ से वाटर को टेक आउट करवा सकते हैं। वाटर चूते जो है वो एक टाइप का इक्विपमेंट फ्लो रनर है और एक टाइप का इक्विपमेंट है जहां बहुत ज़्यादा वाटर फिल हुआ है और आप कोई भी आउटलेट नहीं है कि जिसके थ्रू आप वाटर को बाहर कर पाओ। इन दैट कंडीशन वाटर चूते हेल्प करता है कि आप विंडो या किसी डोर से या विंडो से आप अपर स्टेज से अपर स्टेयर से आप सेकेंड या ग्राउंड फ्लोर तक वाटर को डिस्प्ले कर सकते हैं, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। साल्वेज बैगेस रहते हैं, इनमें आप कुछ इक्विपमेंट है वो आपका जो कुछ डैमेज है या कुछ प्रॉपर्टी आपको सेव करनी है हम उससे सेव कर सकते हैं। स्कूप शोवल जो है, अगर कोई प्रॉपर्टी है और कुछ बहुत प्रीशियस है, आपको उसको सेव करना है या पुल आउट करना है, तो हम स्कूप शोवल का भी यूज़ करते हैं। स्क्वीज एंड मोप्स की आपको लग रहा है कि डोर और विंडोज़ के वजह से वहाँ अगर फायर की सिचुएशन में, किसी डिज़ास्टर की सिचुएशन में कुछ बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो आपका मिरर जो है वो डैमेज हो गया है और आपको लग रहा है कि वहाँ पर उससे और ज़्यादा प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है या पर्सन ऑक्यूपेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम स्क्वीज और मोप्स का यूज़ करते हैं। कुछ फैंस का भी यूज़ करते हैं, लाइक कि आपको जब वेंटिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है और आपके पास वहाँ मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं है, तो एज इन द पर्पज ऑफ यूजिंग द मैकेनिकल वेंटिलेशन वी यूज़ द फैंस जो आपके स्मोक्स को एक्सपेल कर सकता है। मिसलेनियस टूल्स लाइक कि छोटा छोटा जो भी मिसलेनियस टूल्स हो सकते हैं, प्लायर्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं आपके, वो सब प्लायर्स और लाइक दीज आर द टूल्स कि आपका इलेक्ट्रिक फायर वाले टूल्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे कि आप साल्वेज ऑपरेशन में उनको ले जा सकते हैं। दैट इज़ नोन एज द मिसलेनियस टूल्स, साल्वेज कवर्स। अभी जब हम साल्वेज की बात करें तो यहाँ पर आप मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। फायर जो है वो किसी भी कंडीशन में हो सकती है, और जब आप फायर किसी भी कंडीशन में, किसी स्ट्रक्चर में हो सकती है, वाइल्ड फायर हो सकती है स्ट्रक्चर, कमर्शियल में हो सकती है या रेसिडेंशियल प्लेस में हो सकती है। उस समय जब हम डिज़ाइन करते हैं तो टूल बॉक्स की आप इजीली जो फायर पर्सन है, फायरमैन है, वो इजीली उसको ग्रैब करे और उसमें थोड़ा थोड़ा जो मिसलेनियस टूल अभी मैंने आपको बताया, मिसलेनियस टूल के अकॉर्डिंग कि वो इलेक्ट्रिकल टूल भी उसमें कंटेन करेगा और मैकेनिकल टूल इलेक्ट्रिकल टूल में वो लाइक के टेस्टर्स वो डाल के रखेगा कि कहीं पर आपको ज़्यादा पावर तो नहीं है, दैट गेट की प्रॉब्लम हो सकती है। मैकेनिकल में आपको प्लायर्स है, प्लंचर्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपने मैकेनिकल कुछ इक्विपमेंट्स डाले हुए हैं। प्लम्बिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट्स डाले हैं। जनरल कारपेंट्री के लिए आप कुछ हैकसॉस और लाइक शॉस के कुछ पार्ट्स डाल सकते हैं कि कोई डोर लॉक हो गया है तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो जनरल कारपेंट्री का टूल बॉक्स एक बना सकते हैं। छोटी छोटी जो टूल्स हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, जनरल कारपेंट्री का हो, तो उस समय हम जो आपका फायर पर्सन है वो सिचुएशन सिनेरियो को देखकर ये सारे टूल्स को वो एक कंटेनर में लेकर टूल बॉक्स को क्रिएट करता है। लाइक कि दीज आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ साल्वेज टूल ऑपरेशन। जब हम करने जाते हैं तो व्हेन यू फाइंड कि फायर है
तो फायर की सिचुएशन में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर बहुत फायर है तो हम किसी चीज़ से उसको कवर आउट कर देते हैं, बट किसी बड़ी सिचुएशन में आप जा रहे हैं तो आप नॉर्मल किसी चीज़ से उसको कवर आउट नहीं कर सकते हैं। तो जब हम साल्वेज ऑपरेशन करने जा रहे हैं, फायर पर्सन जो है तो दैट डील विद द साल्वेज कवर्स। तो जो साल्वेज कवर रहते हैं वो डिफरेंट टाइप के रहते हैं। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल कि आपने कोई साल्वेज कवर की बारिश के समय पर कुछ लोग ऐसा कुछ शीट टाइप की लगा देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्वेज कवर जो नॉर्मल कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं। बट फायर की कंडीशन में जब आप बात कर रहे हैं तो हम एक कैनवास और विनाइल साल्वेज कवर दैट इज़ कवर्ड विद द विनाइल दैट प्रॉपरली वर्क विथ फायर, तो वो कैनवास हो सकता है या विनाइल हो सकता है। इसलिए जो आप होल देख पा रहे हैं यहाँ पर इस बॉक्स में दैट इज़ गोरमेट कि आप पर्टिकुलर एक प्लेस पे उसको हैंग आउट कर पाओ और हैंग आउट करने के बाद उसको प्रॉपरली फोल्ड आउट भी कर पाएंगे। दैट इज़ द साल्वेज कवर। ये हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को फायर से सेव करने के लिए या फिर आपकी जो वाटर कंडीशंस हैं उनको भी हम सेव करने के लिए, प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए हम साल्वेज कवर्स का यूज़ करते हैं। इनकी जो साइजेस रहती हैं वो डिफरेंट रहती हैं, कुछ 4x6 की रहती हैं, कुछ 8 to 12 की रहती हैं। इनकी ये नॉर्मल कंडीशन रेनफोर्स मटेरियल्स के नहीं और ज़्यादा हैवी विनाइल प्रोडक्ट्स के रहते हैं, इसीलिए हम जो आपके बहुत ज़्यादा फायर को डील कर पाएँ। दीज आर द सम प्रॉपर्टी दैट कि आपको जब फायर साल्वेज कवर को ओपन करना है, इफ़ दैट इज़ स्क्रिबल्ड कि आपने कुछ भी करके उसको ओपन करोगे तो आपको उतना ही टाइम लगेगा। वी हैव ओनली 2 to 3 minutes टू सर्व टू सेव, कि आपके पास 2 से 3 मिनट होते हैं तो आप पर्सन को या प्रॉपर्टी को सेव कर पाते हैं कि आप कॉरिडोर से लेकर सेफ प्लेस तक 2 to 3 मिनट्स में आपको सब कुछ करना है। तो उस सिचुएशन में आप वो साल्वेज कवर को किस तरीके से फोल्ड करना है, तो 2 फोल्ड हो सकते हैं, 2 पर्सन डील हो सकते हैं। आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1 पर्सन साल्वेज कवर भी होता है। जब छोटी सिचुएशन है तो वहाँ पर 1 फायर फाइटर चले जाएगा, तो यहाँ आपका जो फोल्डिंग और रोलिंग है, स्प्रेडिंग कवर आउट है, वो किस तरीके से करता है। 2 फोल्ड, 8 फोल्ड, 12 फोल्ड, 1 to 2 फोल्ड विद द हेल्प ऑफ द गोरमेट्स और द हैंगिंग पॉइंट्स। आप देख रहे हैं कि रोल एंड रोल दैट इज ऑल्सो डिफाइंड इन साल्वेज कवर कि आपको कितने फोल्ड करने हैं। और विद द ट्रिक, विद द ड्रिलिंग ऑपरेशन, जब आप ड्रिल करते हैं तो इन द मोक और ड्रिल वी हैव टू ट्रेंड कि आप जो फायर मैन है, फायर पर्सन है, वो क्या करेगा कि आप कि किस तरीके से उसको ओपन करना है और किस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं इसका लाइक थर्ड वन पोर्शन में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि उसने किस तरीके से फोल्ड किया है और किस अनफोल्ड किया है। देन सेकंड पार्ट उसने कैसे ओपन किया है एंड ऑब्जेक्ट को वो किस तरीके से डील करा है, कैसे वो कवर करा है। आप ऐसे ही जब फायर पर्सन किसी सिचुएशन में, किसी सिनेरियो में जा रहा है तो ही हैज़ टू ट्रिक आउट कि आपको विद इन 2 मिनट्स कैसे साल्वेज कवर को वो डील करेगा और कैसे कवर आउट करके इक्विपमेंट को सेव करेगा। नेक्स्ट इज वाटर वैक्यूम। वाटर वैक्यूम लाइक जैसे सबको पता है वैक्यूम कैसे वर्क करता है। किसी छोटी सिचुएशन में आपको अगर वाटर को टेक आउट करवाना है तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है दैट मूव वाटर फ्रॉम सम एरिया टू अनदर एरिया। और किसी लार्ज अमाउंट के एरिया के लिए हम और दूसरे वाटर वैक्यूम जो पोर्शंस है आपके पंप्स हैं उनका हम यूज़ करते हैं। ये जो पर्टिकुलरली 5 गैलन्स के लिए यूज़ होता है। दिस इज सीन लाइक दिस एंड द फायर पर्सन डील लाइक दिस। दिस इज अ फ्लोर रनर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड द इम्पॉर्टेंट टूल कि आपका जब फ्लोर रनर की हम बात करते हैं तो किसी भी डैमेज एरिया से जब आपको वर्कआउट करवाना है आपका इक्विपमेंट को या प्रॉपर्टी को, और
और ज़्यादा प्रॉपर्टी डैमेज ना हो तो हम फ्लोर रनर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फ्लोर रनर जो है वो साल्वेज कवर का एक पार्ट होता है और साल्वेज कवर से ही इसको बनाते हैं। ये जो कट लेंथ इसकी डिफरेंट होती है, 3/18 है, 8 वाइड है, 23 इंचेस लॉन्ग है। और ये जो है वो टाइल्स फ्लोर्स को हम इनसे विद द हेल्प ऑफ फ्लोर रनर हम इसको स्प्रेड आउट कर देते हैं फ्लोर पर, और यहाँ से आप अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं, या कोई ऑक्यूपमेंट है या किसी और थिंग को हमको एक सिनेरियो से सेफ प्लेस पर ले जाना है तो हम फ्लोर रनर का यूज़ करते हैं। हैव यू लाइक दिस? ये जो ड्रिलर्स हैं, ये 5 पर्सन्स हैं, वो इस तरीके से इसको डील करते हैं। पोर्टेबल पंप ये बेसिकली आपका हैवी, जब आपको वाटर है और उसको बाहर करना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और ये जो है वो फ्लडेड एरिया के लिए यूज़ नहीं करते हैं, लाइक हम बेसमेंट और एलिवेटर्स और इनके लिए हम यूज़ करते हैं पोर्टेबल पंप को। जहाँ पर जो आपका ग्रिट एरिया है फ्लडेड, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो सकती है या मडी वाटर हो सकता है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज़ वाटर जूते। ये आपका एक फ्लोर रनर, जस्ट लाइक अ फ्लोर रनर हैवी डर्ट आउट के लिए होता है कि आपने वाटर जो है वो आपका एक जगह फिल आउट किया हुआ है, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कैनवास मटेरियल को फोल्ड आउट करेंगे और विंडो से उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे लैडर की हेल्प से कि वाटर जो है लाइक दिस इसको फ्लो आउट कर जाए, तो इसको बोलते हैं वाटर जूते। इफ़ द वाटर इज़ टू मच फॉर द कैच, आप उसको विद द मतलब आप उसको एग्जिट पॉइंट्स तक नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम वाटर जूते का यूज़ करते हैं। दैट इज़ यूज इन डाइवर्टिंग। बेसिकली इसका वर्क है कि हम जो वाटर है हम उसको डाइवर्ट कर पाएँ, तो थ्रू द विंडोज़ और डोर्स जब हम लैडर के हेल्प से इसको फोल्ड आउट कर देंगे, लैडर पर इसको फोल्ड कर देंगे और आपका जो वाटर है उसको एक एक्सपेल डोर दे देंगे, तो ये वर्कआउट करता है। Salvage bag are used for cleanup activities on fire scenes to carry salvageable पर्सनल बिलोंगिंग आउट, लाइक कि आपका कोई भी अनवांटिंग या मटेरियल है उसको आपको बाहर करना है और आप उसको साल्वेज कवर से या फ्लोर रनर की हेल्प से नहीं ले जा रहे हैं, लाइक कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर है या बैग से, तो हम साल्वेज बैग जो है उसको वो कैरी कर लेता है और अनवांटेड जो रिपिंग है या टेयरिंग है हम उसकी हेल्प से वहाँ पर उसको वर्कआउट करवा सकते हैं। These are the some scoop and shovels। तो ये जो है मैकेनिकल पार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका इलेक्ट्रिकल कुछ टूल हो सकते हैं, कुछ आपके मैकेनिकल टूल्स होंगे, कुछ स्कूप शोवल्स हो सकते हैं, कुछ हैक्सॉज भी हो सकते हैं वहाँ लॉकआउट करने के लिए। बेसिकली साल्वेज जो है वो आपका सेव करना ही है, ऑब्जेक्टिव जो है साल्वेज का वो आप सेव कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को, और बट ड्यूरिंग द फायर आप एक बात को बार बार रिपीटेडली ध्यान रखेंगे कि साल्वेज जो है वो अब ड्यूरिंग द फायर जब हम डील करते हैं तो हमको सब चीज़ों को लेकर एक आपका टूल बॉक्स बनाया है कि उसमें वो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए भी डील कर पाए, मैकेनिकल फायर के लिए भी डील कर पाए, और इसके लिए हमको स्कूप शोवल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। स्कूप शोवल्स क्या करते हैं कि आपको कोई कंपोजिट है उसको आपको निकालना है या कोई मटेरियल हैवी प्रोडक्ट है उसको आपको कैरी आउट करना है, तो हम स्कूप शोवल का वर्क हेल्प लेते हैं उस समय। डिज़ाइन टू मूव मटेरियल दैट इज़ ऑलरेडी डग आउट एंड स्कूप शोवल, लाइक कि सबने देखा है स्कूप शोवल हम कैरी आउट करते हैं किसी चीज़ को और उसको डग करके बाहर कर देते हैं। तो लाइक कि अगर आप किसी वाटर वाली स्पेस पे साल्वेज करने गए हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा मडी एरिया हो गया है और यू हैव टू सेव समवन और समवन प्रॉपर्टीज, सो गो थ्रू द with the help of the scoop shovel you carry out that mud and walk out through the property places. It is light in weight and heavier option. It depends on the situation कि आपको कहाँ पर इसको लेकर जाना है। Like what is the way to perform?
अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि हम साल्वेज को कैसे डील करें। ये डिपेंड करता है कि साल्वेज हम किसके लिए करने जा रहे हैं, किस सिचुएशन में करने जा रहे हैं, आपको किस चीज़ को कवर करना है। तो दैट इज़ द वे कि आप जब साल्वेज करने जा रहे हैं तो आप फायर के लिए डील कर रहे हैं या वाटर के लिए डील कर रहे हैं, वहाँ पर ऑक्यूपेंट्स ज़्यादा हैं या प्रॉपर्टी ज़्यादा है, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक फेसेस ज़्यादा देखने पड़ेंगे, मैकेनिकल फेसेस ज़्यादा देखने पड़ेंगे, आपको साल्वेज कवर्स ज़्यादा लेकर जाने हैं या आपका जो वाटर पंप है वो ज़्यादा लेकर जाना है। तो आप इससे आप जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अब हम इसमें इवेल्यूएशन की बात करें, नेक्स्ट जो है वो आपका इवेल्युएट करना है कि आपने बहुत दूर से सिनेरियो को देखा कि लाइक कि बहुत ज़्यादा ब्लैकी क्लाउड्स है, हैवी स्मोक क्लाउड्स बन रहे हैं, तो आपको उस समय किस तरीके का कवर लेकर जाना है, कितने डायमीटर का कितने इंचेस और कितने डायमीटर वाला से लेकर जाना है और आप किस तरीके से उसको सरप्राइज कर पाओगे। अगर आप सरप्राइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको विद द हेल्प ऑफ टेंडर्स भी फायर पर्सन को उनके साथ भी आपको डील करना होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आप उस तरीके से कर पा रहे हैं या फैक्टर्स जो हैं। अब लाइक की साइजेस जो है ये यहाँ कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ये लोकेशंस को देखकर आपको फाइंड आउट करते हैं, टाइप ऑफ साइजेस एंड क्वांटिटीज़ हैं, वेदर को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं दैट डिपेंड्स कि आप साल्वेज और उसकी चॉइसेस को कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं। जब हम इवेल्युएशन की बात करते हैं तो इवेल्युएशन जो है इसमें हम बहुत सारा आपका जो हीट रिलीज रेट हुआ है, जब आगे जब हम जानेंगे तो अभी तो ये ऑपरेशन एंड टूल्स हैं। ऑपरेशन में आपने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ऑपरेशन किया तो वहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों से डील की, आपने वहाँ पर्टिकुलरली एक्सपेल किया, स्मोक को एक्सपेल किया, हीट को रिमूव किया। अब आपने हीट को रिमूव किया, साल्वेज का ऑपरेशन, जब हम साल्वेज ऑपरेशन करते हैं, साल्वेज से डील करते हैं तो ऑपरेशन के साथ साथ वहाँ इवेल्युएशन भी होता है, क्योंकि वहाँ जब आप जा रहे हो तो आपने हीट देखा तो आपको पता चला कि हीट रिलीज रेट कितना था वहाँ पर आपने मटेरियल देखा तो मास कितना था, वहाँ पर आपका लोड कितना, फ्यूल लोड कितना था। तो ये सब जब हम डील करते हैं तो ऑपरेशन के बाद में इवेल्युएशन करते हैं और अब उसके बाद आप एक असेसमेंट बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द साल्वेज ऑपरेशन। ऑपरेशन में सिर्फ आपने जो पर्टिकुलर सेव किया वो आएगा और उसके बाद जब हम बात करेंगे तो साल्वेज इवेल्युएशन की, वो पर्टिकुलरली आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है। साल्वेज इवेल्युएशन ऑफ फायर सिचुएशन, तो हो सकता है कि आप जब फायर की बात कर रहे हैं तो फायर सिचुएशन होगा, अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो हम वाटर सिचुएशन में जाएंगे। तो उस समय आप आपको क्या क्या रिमूव करना है, किस तरीके से ऑपरेशन करना है, कौन सा फैक्टर आप यूज करने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन साल्वेज। साल्वेज आपको साथ यहाँ पर असेसमेंट भी करता है, असेसमेंट करके आपको जो सेफ्टी ऑडिटर्स हैं उनको एक रिपोर्ट भी जनरेट करवाता है, जो आपके लॉसेस हैं, फायर लॉस हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करता है। इसके थ्रू आप यहाँ जब हम एक्सपेल करते हैं, लास्ट पॉइंट इज एक्सपेलिंग स्मोक। जब आप स्मोक को डिफाइन करते हैं तो उसके थ्रू आप विजिबिलिटी को भी डिफाइन कर पाते हैं कि वहाँ इतनी विजिबिलिटी थी तो लाइक कि वहाँ पे स्मोक जनरेशन इतना हुआ था, और पैचेस ऑफ वेंटिलेशन के थ्रू आप फाइंड आउट कर पाते हो कि वहाँ पर नेचुरल वेंटिलेशन है या मैकेनिकल वेंटिलेशन है, वो भी आप फाइंड आउट कर पाते हैं। जब आप रिमूव करते हो, वाटर को रिमूव कर रहे हो किसी बिल्डिंग से या आपने स्मोक को रिमूव किया, तो वहाँ कौन कौन से इक्विपमेंट आपको यूज़ हुए हैं वो सब साल्वेज इवेल्युएशन में ही आते हैं। साल्वेज इवेल्युएशन के हेल्प से हम बहुत सारा जो आपका रिस्क असेसमेंट है वो कर सकते हैं कि जो आपके हिस्टोरिकल में जो आपने डील किया है वो आगे ना हो। तो इन फ्यूचर जब आप डील करेंगे तो यहाँ पर साल्वेज ऑपरेशन के साथ साथ आपको असेसमेंट भी करना होगा, दैट इज साल्वेज इवेल्युएशंस। और साल्वेज इवेल्युएशन पर्टिकुलर केस के लिए होता है दैट डील्स विद द HRR
आपका फ्यूल लोड देता है, और यहाँ पर मैकेनिकल वेंटिलेशन, जैसे कि आप किसी कन्फाइंड एरिया में हैं या पूल एरिया में हैं, पूल एरिया के फायर को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, या आप आपके कन्फाइंड एरिया को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन आप यूज़ करेंगे जब आप किसी ऑक्यूपमेंट को या किसी मटेरियल को आप फाइंड आउट करने, साल्वेज करने जा रहे हैं या सेव करने जा रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के आपके मटेरियल्स जो हैं वो आपको लेकर जाना पड़ेगा, टूल्स और इक्विपमेंट लेकर जाने पड़ेंगे। तो साल्वेज ऑपरेशन में हम यहाँ पर लॉस इन्वेस्टिगेशन ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि वो सेकेंड पार्ट होता है। जब आप प्राइमरी पार्ट को जब डील करते हैं, लाइक कि 2 पार्ट्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए थे। साल्वेज जब हम फाइट करते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ, 2 टाइप के कॉजेस हैं। जब हम डैमेज की बात करते हैं तो वेरी फर्स्ट की प्राइमरी कॉज होता है, तो प्राइमरी कॉज में फायर और स्मोक होता है। जब हम इसको सप्रेस करते हैं, इस कंडीशन में जब प्राइमरी कॉज हुआ है, ये डैमेज हुआ है और हमको इससे डील करना है, पर ड्यूरिंग द फायर दैट इज प्राइमरी डैमेज, तो इस प्राइमरी डैमेज में जब आप साल्वेज करने जाओगे तो दैट इज डिफरेंट। और जब हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो वहाँ सिर्फ फायर सप्रेशन है, तो सेकेंडरी रिसोर्सेज के थ्रू आप फायर सप्रेशन कर रहे हो आफ्टर द फायर। तो आफ्टर द फायर की जब हम बात करते हैं तो वो ओवरहॉल होता है, दैट इज द सेकेंड पार्ट, दिस इज ओवरहॉल। एंड जब आप ड्यूरिंग द फायर को सेव करते हैं, दैट इज साल्वेज। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट सब कुछ हम सेव कर सकते हैं। आई होप कि आपको साल्वेज जो है वो समझ में आया होगा। ओके, in next class I am going to explain you the fire loss investigation and some part of our salvage evaluation of fire situation for the particular fire situation, कि आप उस particular fire situation में किस तरीके से salvage करेंगे with the help of the different type of आपके tools and equipment। and the other part कि जैसे मैंने आपको बताया कि operation के साथ साथ वहाँ पर कुछ investigations भी होते हैं, that is also the part of the salvage, कि आपके पास एक चेकलिस्ट होती है that you have to take out कि आपने क्या क्या वहाँ पर देखा है। इसके थ्रू जो सेफ्टी ऑडिटर्स रहते हैं, सेफ्टी पर्सन रहते हैं, फायर पर्सन रहते हैं, दैट डिफाइन कि वहाँ पर किस तरीके की फायर हुई है और किस तरीके का लॉस हुआ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। सो इन माई नेक्स्ट क्लास वी गो थ्रू द फायर लॉस इन्वेस्टिगेशंस। थैंक यू।